Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Once again, we both welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम दोनों आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Church, welcome you. कलीसिया आपका स्वागत करती है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for once again you have gathered us. फिर से एक बार आपने हमें इकट्ठा किया उसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you for Jesus Christ यीशु मसीह के लिए आपका who धन्यवाद, loved us and gave Himself. जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। Jesus Christ, we worship you. यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते You हैं। are our life. आप हमारा जीवन You हो, are our strength. आप हमारा सामर्थ्य You हो, are our joy. आप हमारा आनंद हो। Yes, Lord, because of you we got grace. हाँ प्रभु, आपकी वजह से हम अनुग्रह पाए हैं। As we are sitting in your presence, जैसे हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, we are studying your word. हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं। Help us. Help us. हमारी मदद करो। Send Holy Spirit. पवित्र आत्मा को भेजो। Holy Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा, हम आप में विश्वास करते हैं। You are the one who will lead us in all the truth. आप ही हो जो हमें सारी सच्चाई में ले जाओगे। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते Talk हैं। with us. हमारे साथ बात करो, Make us understand हमें समझाओ। as we are studying your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास कर रहे हैं तब समझाओ। Open our eye हमारी आंखें खोलो, so that we can see your glory. इसीलिए कि हम आपकी महिमा देख We can सके, see your power. आपके सामर्थ को हम देख We सके, can know your wisdom. आपके ज्ञान को हम जान सके। Open your ear हमारे कान खोलो, so that we can listen you. इसीलिए कि हम आपको सुन सके। Touch our heart. हमारे हृदय को छू लो, Make us understand. हमें समझाओ। Once again, we commit our life in your hand. फिर से एक बार हम हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। Jesus Christ, with your blood, wash us. यीशु मसीह, आपके लहू से हमें धो दो, Make us set free हमें मुक्त करो and bless us. और हमें आशीष दो। Bless each one who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आशीष दो। Talk with us. हमारे साथ बात करो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, talk with us. पिता, हमारे साथ बात करो। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा So हो। today we are going to study about a new truth. आज हम एक नए सत्य के बारे में अभ्यास करेंगे। Already the truth is been revealed to the church. मंडली को यह सत्य बताया गया है, But unless we don't study the word, we cannot come to the truth. लेकिन जब तक हम वचन का अभ्यास ना करें तब तक हम सत्य के पास नहीं आ सकते। Why we church as we Christian people, why we believe we will be saved? हम मसीही लोग, ईसाई लोग, हम उद्धार पाएंगे, बच जाएंगे, ऐसा हम क्यों मानते हैं? That's what Bible says. ऐसा बाइबल कहता है। There are two type of people in the world. दुनिया में दो तरह के लोग हैं There are two teaching that has already been spread. और दो तरह का शिक्षण है जो पहले से ही फैलाया गया है। One church that says we will see tribulation. एक कलीसिया ऐसी है जो ऐसा कहती है कि हम सताव को देखेंगे, Other church believe we will be saved from the tribulation. और दूसरी मंडली ऐसी है जो ऐसा कहती है कि हम सताव से हमें बचाया जाएगा। When the Antichrist will come, church will be not there. जब ख्रिस्त विरोधी आएगा तो कलीसिया नहीं होगी। And the other people say when the Antichrist will come, church will face that tribulation. और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि जब मसीह विरोधी आएगा तो कलीसिया उस पीड़ा का सामना करेगी। So what you believe? तो आप क्या मानते हो? Will we suffer? And will we see the time of Antichrist? क्या हम मसीह विरोधी का समय देखेंगे Or we will be raptured? या फिर हम उठा लिए जाएंगे? So either you have received the truth or you have been deceived. तो या तो आपने सत्य को पाया है या फिर आप धोखे में पड़े हो। Either the true spirit has taught you or you are been in error. या तो सच्चाई के आत्मा ने आपको सिखाया होगा या फिर आप गलत फहमी में हो। One is the truth. एक सत्य है, Either we will be in the tribulation time हम पीड़ा के समय में रहेंगे, या तो यह, or we will be escaped from the tribulation time. या पीड़ा के समय से हमें छुड़ा लिया जाएगा। दोनों में से एक ही सत्य है। We church, we believe that we will be not
we will not see the Antichrist time. हम मंडली के लोग ऐसा मानते हैं कि हम मसीह विरोधी का समय नहीं देखेंगे। That's what we believe. ऐसा हम मानते And हैं that what I studied and I am preaching that. और यही बात का मैंने अभ्यास किया है और यह बात का प्रचार मैं कर रहा हूँ। Either Holy Spirit is leading me or another spirit is leading me. या तो पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है या कोई दूसरा आत्मा मुझे चला रहा I है। got revelation through the spirit, the God spirit, or either I've been deceived. मुझे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकाश ज्ञान मिला है या फिर मुझे धोखे में डाला गया है। Either I am in true or I am in lie. या तो फिर मैं सच में होगा या फिर झूठ में पड़ा हूँ। But what you believe? लेकिन आप क्या मानते हो? You should come to some conclusion. आपको कोई निष्कर्ष पर आना चाहिए। Will you face the tribulation time or you are going to escape from that hour? आप उस पीड़ा का सामना करोगे या फिर उस समय से आपको छुड़ा लिया जाएगा। I have 7 reasons to believe that church will not see the time of Antichrist. कलीसिया मसीह विरोधी का समय नहीं देखेगी, उसके लिए मेरे पास 7 कारण हैं। We will not have the mark of the beast. हमारे ऊपर उस जानवर का, पशु का चिन्ह नहीं होगा। That's what we believe. ऐसा हम मानते Church हैं। of the living God, this believe that we are not going to face the Antichrist time or period. जीवित परमेश्वर की मंडली हम ऐसा मानते हैं कि मसीह विरोधी का उस समय, पीड़ा का समय हम नहीं देखेंगे। You should also confess your confession. Your faith. आपको भी आपके विश्वास की कबूलात करनी चाहिए। 1 John 2:18 says, पहले यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय 18 वचन कहता है, this is the end time we are living in. हम जिस समय में जीते हैं अंत का समय है। Because there are many Antichrist has been already in this world. क्योंकि इस संसार में बहुत सारे मसीह विरोधी उठे हैं। So Antichrist are here in this world. तो ख्रिस्त विरोधी इस जगत में है। But we know the one who is the beast, that what Jesus said about. लेकिन जो हम उस जानवर को, पशु को जानते जिसके बारे में यीशु ने कहा। Jesus said in Revelation that Antichrist, the beast, is going to come and he will harm all the people. प्रकाशित वाक्य में यीशु ने कहा कि वह पशु, वह मसीह विरोधी आएगा और सब लोगों को नुकसान करेगा। So that is the original one, Antichrist. तो वह सच्चा वास्तविक मसीह विरोधी है। Today there are Antichrist people. आज मसीह विरोधी लोग हैं। Matthew 24 and verse 5 says, मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 5वां वचन कहता है, Jesus said like this, यीशु ने इस तरह से कहा, many will receive this Antichrist. कि बहुत सारे लोग इस मसीह विरोधी का स्वीकार कर लेंगे। Because they will be deceived. क्योंकि उनको धोखे में डाला जाएगा। Many will say, I am anointed of God. बहुत लोग आकर कहेंगे कि मैं परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ I हूँ। am Christ. मैं मसीहा हूँ। Christ means anointed one. मसीहा का अर्थ होता है अभिषिक्त। I am chosen one. मैं पसंद किया हुआ हूँ। Today all people, all servants say, I am chosen of God. आज सब सेवक ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, And पसंद किया so है। they are Christ. इसीलिए वे सब लोग मसीहा है। Disciple were also been called as Christian. चेलों को भी मसीही कहा गया। Because they were anointed by the Christ. क्योंकि मसीहा के द्वारा उनका अभिषेक हुआ था। Jesus Christ anointed them, appointed them and gave them some work. यीशु मसीह ने उनको अभिषेक किया, उनको नियुक्त किया और कुछ काम दिया। And so they are also Christ. इसीलिए चेले भी मसीहा है। And we are also Christ if we are being chosen. और यदि हमें पसंद किया गया है तो हम भी मसीहा है। So Jesus said there will be many Christ. तो यीशु ने कहा कि बहुत सारे मसीहा उठेंगे। And they will say, I am chosen. और वे आकर कहेंगे कि मैं पसंद किया हुआ हूँ। But if we are chosen or not, we should find out. We should not judge anyone. We should judge ourselves. लेकिन हमें दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पसंद किए हुए हैं या नहीं वह हमें ढूंढ निकालना चाहिए। You will be deceived. That's what Jesus said. यीशु ने ऐसा कहा कि तुम्हें धोखे में डाला जाएगा। You will be deceived and you will be in doubt. तुम धोखे में डाले जाओगे और संदेह में रहोगे। And you will believe a lie. और तुम झूठ में मानोगे। Now, as Jesus said in Matthew 24 and verse 15,
जैसे यीशु ने कहा मत्ती 24वां अध्याय 15वां वचन, When you therefore shall see the abomination of desolation, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली द्रोणित वस्तु को देखो, Jesus said, when you find out the story that is said, that the prophecy that has been said by Daniel, दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्य कहा गया वह बात जब आप ढूंढ निकालो, when you find out the desolation happening, जब घृणित वस्तु को आप होते हुए देखोगे, that is the hour of Antichrist तो वह मसीह विरोधी का समय है that stand in the holy place. When you find out that thing, that is the time Antichrist has been entered in the world. जिसे पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, उस समय आप यह ढूंढ निकालो कि वह मसीह विरोधी का समय है। So Daniel had already prophesied तो दानियल ने पहले से भविष्य कहा था that there will be time of desolation कि ऐसे उजाड़ने का समय आएगा and that all where it will he will come and destroy everywhere everything. कि वह आएगा और सबको उजाड़ देगा, But before he come, he will sit in the holy place. लेकिन वह आने से पहले वह पवित्र जगह में बैठेगा। So Daniel gave revelation and he warned the Israel people. तो दानियल ने प्रकटीकरण दिया, ज्ञान दिया और उसने इजरायली लोगों को चेतावनी दी। He said, one anointed will come and he will sit in the holy place. उसने कहा कि एक अभिषेक पाया हुआ उसके जैसा आएगा और पवित्र स्थान में बैठेगा And that will be the time of desolation. और वह उजाड़ने का समय होगा। So Jew people had the prophecy of Daniel. तो यहूदी लोगों के पास दानियल का भविष्य वचन था। Then they don't believe in New Testament. यहूदी लोग नए नियम में नहीं मानते हैं, They are holding just the book of Daniel. वे लोग केवल दानियल की किताब को पकड़े रखे हैं। The holy place, here it says, when you see the one who is standing or who is sitting in the holy place, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब उस घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़े हुए देखोगे, but right now there is no temple. लेकिन अब तो वह पवित्र मंदिर नहीं है। So there is no holy place where that Antichrist will come and sit or stand. तो ऐसा कोई पवित्र स्थान अभी नहीं है कि जहां पर वह मसीह विरोधी आकर खड़ा रहे या बैठे। Already there is no temple in Jerusalem or in Israel. इज़राइल में या यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है There to go and worship or to go and give sacrifice. कि वह ऐसी जगह नहीं है कि जहां जाकर आराधना की जाए, बलिदान किया जाए। So today if you believe that the chip has been found or 666 has been coming, then that is wrong. तो आज यदि आप ऐसा मानते हो कि वह चिप मिल गई है या 666 तीन चक्के आ रहे हैं, तो वह सारी बात झूठ है। The Antichrist will announce and he will demand with the people that they should make the mark of that beast. मसीह विरोधी आकर वह दावा करेगा, वह मांग करेगा कि लोग To put 666 on their forehead on their or right hand. वो मसीह विरोधी ऐसा दावा करेगा, मांग करेगा कि लोग वह 3-6 की निशानी अपने हाथ पर या अपने मस्तक पर ले। So Jesus Christ said that in Revelation 13th chapter. तो यीशु मसीह ने यह बात कही प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में। So today if people are afraid to put or to take anything. तो आज ऐसी कोई बात लेने से यदि लोग डरते हैं तो Today people are afraid because of this 666. आज ये 3-6 की बातों से लोग डरे हुए And that हैं is mystery. और वह तो मर्म है। But Jesus said, when you see the one before destruction, he will come and sit in the temple. लेकिन यीशु ने कहा कि The one who is coming, he will sit in the temple, and that is the hour of his
reign or he will rule from that time. यीशु ने कहा कि उजाड़ने से पहले वह आकर उस मंदिर में बैठेगा और उसके बाद उसका राज करने का समय होगा। So there is no temple today. तो आज मंदिर नहीं है, So Antichrist is not on this world. तो मसीह विरोधी इस संसार में नहीं है, And he is not ruling right now. और वह इस समय में मसीह विरोधी अधिकार नहीं चला रहा है। Daniel has prophesied that he will rule for 7 years. दानियल ने भविष्यवाणी कही थी कि वह 7 साल तक राज करेगा। He said about 1 week. दानियल ने 1 सप्ताह के बारे में कहा। That means 7 years he is going to start his ministry. उसका अर्थ है कि 7 साल तक वह अपनी सेवकाई, अपना काम चालू करेगा। But today there is no Antichrist. लेकिन आज मसीह विरोधी नहीं है। There are deceivers in the world, इस दुनिया में धोखा देने वाले लोग हैं, but the one who is being called man of sin is not yet appeared. लेकिन जिसे पाप का पुरुष कहा गया है वह अब तक प्रकट नहीं हुआ है। And so there is no 666 right now. इसीलिए अब तक वह 3:6 आया नहीं है। 2 Thessalonians 2 and verse 3 says, दूसरा थिस्सलुनीका का पत्र उसका 2 अध्याय 3 वचन कहता है, Paul said, no man you be deceived. पौलुस कहता है कि Let no man deceive you. किसी रीति से किसी के भी धोखे में मत आओ, कोई आपको धोखे में ना डाले, Because क्योंकि the Antichrist, when he will come, before something will happen. मसीह विरोधी आएगा, उससे पहले कुछ होगा। For that day shall not come except this thing is going to happen. क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि यह बात ना हो जाए। Before this Antichrist come to rule, यह मसीह विरोधी राज करने आए उससे पहले something have to fall away first. उससे पहले कुछ तो बातें हैं जो होनी चाहिए, होनी पड़ेगी। Verse 3. 3 वचन, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। Except there come a falling away first. People will fall. जब tक लोग गिरे नहीं तब तक वह समय नहीं आएगा, उससे पहले वह समय नहीं आएगा। And then after later on that man of sin will be revealed in the world. और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र उसके बाद संसार में प्रकट होगा। The son of perdition, he will appear. विनाश का पुत्र प्रकट होगा। Verse 4. 4 वचन, That same person, the sin of man, the man of sin, who will appear, is the one who opposes and he exalts himself and he wants the glory of God. वह पाप का मनुष्य वही है कि जो विरोध करता है और अपने आप को ऊंचा उठाता है परमेश्वर के महिमा के सामने और अपने आप को परमेश्वर कहता है। He wants to be worshipped. वह अपनी आराधना हो जाए ऐसा चाहता है। His desire is he want to sit in the temple of God. उसकी इच्छा यह है कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठे। And he want the same glory people are giving to God. और लोग जो महिमा परमेश्वर को देते हैं वही महिमा वह चाहता है। So when the Antichrist will come, he want people to worship. तो जब मसीह विरोधी आएगा तो वह पहले यह मांग करेगा कि लोग उसकी आराधना करें। And then after, who are not worshipping him, he will persecute them. और उसके बाद जो उसकी आराधना नहीं करते हैं उनको वह पीड़ा देगा। Why this person who will be exalt himself to prove himself as God? यह व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर साबित करने के लिए अपने आप को ऊंचा क्यों उठाएगा? Because that is his desire from the beginning. क्योंकि पहले से ही उसकी यह इच्छा है। Revelation 13 chapter verse 1 says, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पहला वचन कहता है, Then I saw rising out of the sea a wild beast with 10 horns and 7 heads. और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। So John was watching. Among the people, someone rose as a king. तो यूहन्ना लोगों में देख रहा था कि किसी को राजा बनाकर ऊंचा किया गया। From the sea, someone was rising, and that was a wild beast.
समुद्र में से कोई उठ रहा था और वह जंगली पशु था। And that is the 13th chapter, और यह 13वां अध्याय है प्रकाशित verse वाक्य 2. उसका दूसरा वचन। More John saw dragon, और आगे यूहन्ना ने देखा अजगर, and he gave power to this beast who came out from the sea. और उस अजगर ने इस पशु को सामर्थ दिया जो पशु समुद्र से निकला था उसे। Dragon gave him power and his seed, and gave even authority, his own authority. अजगर ने उसे अपना सामर्थ दिया और अपना सिंहासन भी दिया और अपना अधिकार भी दिया। So that this beast who come and boast before God, इसीलिए कि यह पशु आकर परमेश्वर के सामने घमंड करे, and whatever his desire, that will be manifested. और उसकी जो Manifest. कोई भी इच्छा हो वह प्रकट करे। Revelation 12 chapter verse 9. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन। This beast will appear, and later on Satan too will appear on the face of the earth. यह पशु पहले प्रकट होगा और उसके बाद शैतान भी दिखेगा इस पृथ्वी पर। When Christ and God will have their kingdom in heaven, जब मसीहा और परमेश्वर का अपना राज्य स्वर्ग में होगा and तब, Satan will be cast out from that heaven, और शैतान को उस स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, and Antichrist on this world, and Satan, they will join and rule the world. तब मसीह विरोधी संसार में और उसके साथ शैतान भी जुड़ेगा और दोनों मिलकर संसार पर अधिकार चलाएंगे। 666 or the destruction time will come after Antichrist. 3-6 का समय या विनाश का समय मसीह विरोधी के समय के बाद आएगा। 2 Thessalonians 2 and verse 8. दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय 8वां वचन। And then shall that wicked will be appear, or he will be revealed to the world. तब वह अधर्मी प्रकट होगा, इस संसार के सामने आएगा। So we are reading and studying that when Antichrist will appear. तो हम यह पढ़ रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं कि मसीह विरोधी कब प्रकट होगा, And when he will appear, what will happen? और जब वह प्रकट होगा तो क्या होगा। The Lord shall consume with the spirit of his mouth. He will destroy with his glory, with his brightness of his coming. तब प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से उसे मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। But before this Antichrist appear in the world, something will happen. लेकिन यह मसीह विरोधी संसार में प्रकट हो उससे पहले कुछ होगा। We believe Jesus will appear in the cloud. हम विश्वास करते हैं कि मसीहा यीशु आकाश में प्रकट होगा, बादल में प्रकट होगा। Before coming, he will be appear in the cloud. आने से पहले प्रभु बादल में प्रकट होगा। Revelation 1st chapter verse 7. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन। Behold, he come with clouds, कि and every eye shall see him, and they will also see who have pierced him. और देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। Those who have pierced him, जिन्होंने उसे बेधा था, and all kindness of the earth shall wail, or they will say woe, there will be woe because of this Jesus Christ coming. और पृथ्वी के सारे कुल ये यीशु मसीह के कारण छाती पीटेंगे। That will happen. ऐसा होगा। Jesus Christ will appear in the cloud, and then he will come on the earth. यीशु मसीह बादल में प्रकट होगा, दिखाई देगा, उसके बाद इस पृथ्वी पर आएगा। Zechariah 14:4 says, जकारिया की किताब 14वां अध्याय 4वां वचन कहता है, when Jesus Christ will come back, his feet will stand on the mountain of Olive. जब यीशु मसीह वापस आएगा तो उसके पैर जैतून के पहाड़ पर रुकेंगे। So two things we are reading. तो दो बातें हम पढ़ते He हैं। will appear in the cloud, वह बादलों में दिखाई देगा and the people on the world will repent, और इस संसार में लोग प्रायश्चित करेंगे, and who have pierced him, they will see him, और जिन्होंने यीशु को छेदा है, बेधा है, वे भी उसे देखेंगे। and his feet he will stand on the mountain of Olive, और वह जैतून के पहाड़ पर खड़ा रहेगा and he will establish his kingdom. और वह अपने राज्य की स्थापना करेगा। Now Bible says,
अब बाइबल कहता है, Revelation 3 and verse Acts 3 and verse 21. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21वां वचन, But heaven must be his home लेकिन स्वर्ग उसका घर होना चाहिए until the day of the universal restoration. अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना करे। So until there is no restoration in the world, he will not appear or come. तो जब तक इस पृथ्वी पर संसार में सुधार नहीं आएगा तब तक वह प्रकट नहीं होगा, नहीं आएगा। So this what Peter said. तो यह पत्रस ने कहा, Already God has spoken by holy prophet many times. परमेश्वर ने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत बार कहा। So until Lord don't prepare place in heaven, he will not return back. तो प्रभु जब तक आकाश में जगह ना तैयार कर ले तब तक वह वापस नहीं आएगा। Until there is no restoration everywhere, he will not appear. पर हर जगह जब तक सुधार नहीं होगा तब तक वह प्रकट नहीं होगा। Here the word is restoration. यहाँ पर जो शब्द है वह सुधार, रिस्टोरेशन। It means उसका अर्थ है once again he will make the perfect place as it was before the fall. उसका अर्थ है कि फिर से एक बार पृथ्वी गिरी उससे पहले जो संपूर्ण जगह थी ऐसी शुद्ध संपूर्ण जगह बनाएगा। So until he don't restore everything, he will not be appear to Jew, or he will not till he will come on the olive mountain. तो जब तक सारी बातों की वह पुनः स्थापना ना कर दे या सुधार ना कर दे तब तक वह यहूदियों को भी प्रकट नहीं होगा और जैतून के पहाड़ पर भी नहीं आएगा। John 14:3 says, यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 3 वचन कहता है, I will go and prepare place for you, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार and करूंगा I will return and take you with me, so where I am, so that you may be where I am. फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Before I come to take you, I will prepare the place. तुम्हें मैं लेने आऊं उससे पहले मैं जगह तैयार करूंगा। Before he come, he will prepare his place so that he can take you where he is. वह आए उससे पहले वह जगह तैयार करेगा ताकि वह जहां है वहां तुम्हें भी ले जाए। When he will restore up heaven, जब वह ऊपर के आकाश का सुधार कर लेगा, मरम्मत कर लेगा, he will appear to the people. तब वह लोगों के सामने प्रकट होगा। Until he don't restore everything, he will not come on the face of the earth. जब तक वह सारी बातों की मरम्मत ना कर ले तब तक इस पृथ्वी पर वह दिखाई नहीं देगा। Before Antichrist come, मसीह विरोधी आए उससे पहले the spirit of lawlessness will be at working. It will keep working, keep on working. तब तक उस दुष्ट का आत्मा काम करता रहेगा। 2 Thessalonians 2 and verse 3. So today there are Antichrist people, but that spirit is working. Still Antichrist is not appeared. तो आज भी मसीह विरोधी लोग हैं और मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो मसीह विरोधी है, खरा मसीह विरोधी, वह प्रकट नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। Spirit is working, he is not still appeared. उसका आत्मा काम कर रहा है लेकिन अब तक वह प्रकट नहीं हुआ है। So Paul said, do not be deceived. What will happen? तो क्या होगा उसके बारे में पौलुस कहता है कि धोखे में मत पड़ो। For it will not come, that Antichrist will not appear until after the great or the first thing fall. तो वह मसीह विरोधी तब तक नहीं दिखेगा जब तक The thing that is already exist, it doesn't fall, will not appear. जब तक जो बातें हैं वे सारी बातें गिर ना जाए, टूटे नहीं, तब तक वह मसीह विरोधी प्रकट नहीं होगा, दिखेगा नहीं। Verse 7. 7वां वचन, For the mystery of lawlessness does already work. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता It है। does really working still. सच में अब तक वह काम कर रहा Only है, there is one that restrain now.
लेकिन एक है जो रोकता है, It is hindrance. एक है जो उसके लिए रुकावट है। Verse 7. 7वां वचन, He who now that work as hindrance will come. पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, उसके बाद आएगा। The spirit is, Antichrist spirit is working in the world, मसीह विरोधी का आत्मा संसार में काम कर रहा है, but something is hindering this Antichrist to appear. लेकिन मसीह विरोधी को प्रकट होने के लिए कोई तो है जो उसे रोक रहा है। Until that doesn't taken out, the What- hindrance, until it doesn't taken out of the way, और वह रुकावट करने वाले को उसके मार्ग में से जब तक हटा ना दिया जाए Antichrist will not appear in the world. तब तक मसीह विरोधी संसार में प्रकट नहीं होगा। So we believe there will be no 666 at the church time. तो हम ऐसा मानते हैं कि कलीसिया के समय तक 3-6 का समय नहीं आएगा, Until someone arise from out of the mist. जब तक सबके बीच में से कोई खड़ा ना हो तब तक। For that day shall not come except there come a falling away first. Something had to remove, something had to fall. That is already hindering Satan's Satan spirit. कुछ बातों को गिरना पड़ेगा और कुछ बातें हैं जो रुकावट की बातें हैं, उसे जब तक हटा ना दिया जाए तब तक मसीह विरोधी नहीं आएगा। And the man of sin be revealed. और तब वह पाप का मनुष्य प्रकट होगा। When? कब? But before that something is going to be removed. लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा है जिसे हटा दिया So जाएगा। before Antichrist come, तो मसीह विरोधी आए उससे पहले, something will be removed. उससे पहले कुछ ऐसा है जिसे हटा दिया जाएगा, So that no one know what the ministry of Antichrist is. इसीलिए कि मसीह विरोधी की सेवा क्या है, उसका काम है, कोई जाने नहीं। That is the only church who have been given grace to speak the revelation. कलीसिया को ही यह अनुग्रह दिया गया है कि कलीसिया ज्ञान की बातें समझे और बोले। In Ephesians 3rd chapter verse 9 it says, एफएसी का पत्र 3 अध्याय 9वां वचन कहता है, church is the door कलीसिया to give revelation to the world. कलीसिया तो वह द्वार है जो इस संसार वालों को प्रकटीकरण देती है, ज्ञान देती है। Without church there is no revelation. मंडली के बिना कोई ज्ञान नहीं है, प्रकटीकरण नहीं है। So church is the hindrance to the Antichrist. तो मसीह विरोधी के लिए मंडली रुकावट है। Once the first what is hindering will be removed, he will be appear in the world. जो रुकावट है मसीह विरोधी के लिए, पहली रुकावट, उसे जब तक हटा ना दिया जाए तो हटा देने के बाद मसीह विरोधी संसार में दिखेगा। So here it says, unless the first not go away, तो पहला जो है उसे जब तक हटा ना दिया जाए Antichrist cannot come and take a seat to rule on the earth. तब तक मसीह विरोधी आकर पृथ्वी पर राज करने के लिए सिंहासन नहीं ले सकता। If you have read whole Bible, यदि आपने पूरा बाइबल पढ़ा हो you तो would very well understand. आप अच्छी तरह से You would have समझोगे। understood very well. आप शायद अच्छी तरह से समझ गए होते। The thing which is from the beginning will be taken away. पहले से जो बातें हैं उसे हटा दिया जाएगा, And that is church which is as a hindrance to the Antichrist. और वह तो मंडली है जो मसीह विरोधी के लिए रुकावट है। And something have to fall और कुछ बातें ऐसी है जिसे गिरना पड़ेगा, so that man of sin be revealed. इसीलिए कि पाप का मनुष्य प्रकट हो जाए। So let no man deceive you by any way, Paul said. तो पौलुस कहता है कि कोई किसी भी रीति से आपको ना भरमाए, For it will not, he will not manifest unless this rebellious thing which is already there. तो यह जो बलवा करने वाली बातें हैं वह जब तक है तब तक वह प्रकट नहीं होगा। We know after pastor goes or after the saint go, we have saw mischief
in the world, हम in the houses. हम जानते हैं कि जब संत चले जाते हैं या पासवान घर में से चले जाते हैं, उसके बाद हम घर में पूरी अव्यवस्था और गलत बातों को देखते हैं. Unless the one who oppose not fall or be removed, जब तक जो विरोध करता है उसे हटा ना दिया जाए या उसे गिरा ना दिया जाए, unless the strong one is not removed, जब तक जो मजबूत है, शक्तिशाली है, उसे हटा ना दिया जाए, man of sin, the sin cannot work or can be he will be visible. तब तक पाप का मनुष्य काम नहीं कर सकता और सबके सामने दिखाई नहीं दे सकता. So the hindrance have to go. तो जो रुकावट है बीच में उसे हटना पड़ेगा. And the church is opposing and he's holding back the sin of man to be revealed. तो कलीसिया उसका विरोध कर रही है और जो पाप का मनुष्य है उसे प्रकट होने से रोक रही है. Unless the church is not been removed from the way, Antichrist cannot come. उसके मार्ग में से जब तक मंडली को हटा ना दिया जाए तब तक मसीह विरोधी नहीं आ सकता. So Paul clearly say in verse 6. तो 6ठे वचन में पौलुस स्पष्टता से कहता है, 2 Thessalonians 2 and verse 6. दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 6ठा वचन. And now you understood, now you know what is that holds. और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है. Who is holding Antichrist? Who is holding the Antichrist not to come? मसीह विरोधी को आने से कौन रोक रही है? If the first thing is removed, Antichrist can appear in the world. यदि पहली बात को हटा दिया जाए तो मसीह विरोधी संसार में प्रकट हो सकता है. And you know what is now preventing him, और तुम जानते हो कि अब उसे कौन रोक रहा है, so that he may be revealed at the proper time. कि वह अपने ही समय में प्रकट हो. So Jesus is preparing house for his people. तो यीशु अपने लोगों के लिए घर तैयार कर रहा है. And he have to be at home till he restore everything. Until he don't restore everything, he have to be at home. और जब तक यीशु सब बातों की मरम्मत ना कर दे, सुधार ना ला दे, तब तक यीशु को अपने घर में ही रहना है. And Jesus said, if I prepare the home or house for you, I will not return come to take you. और यीशु ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे लिए घर तैयार ना कर दूं, तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा. So destruction time is going to happen, but after church. तो विनाश का समय तो आने ही वाला है, लेकिन कलीसिया के बाद होगा. So Paul made clear who is holding the entry gate, who is So standing at the entry gate. तो पौलुस यह स्पष्ट कर रहा है कि प्रवेश द्वार पर कौन खड़ा है और कौन रोक रहा है. And that is the church. और वह मंडली है. Matthew 16:18 says, मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 18वां वचन कहता है, Jesus said, Peter, I'm going to build my church on this rock. यीशु ने कहा कि पतरस, मैं इस चट्टान पर मेरी कलीसिया बनाऊंगा. And the gate of hell shall not prevail against this church. और अधोलोक के फाटक इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे. The power of the place of death shall not prevail over the church. मृत्यु की जगह का सामर्थ मंडली के ऊपर जय नहीं पाएगा. So when there is church, there will be no privilege of Satan. तो जब तक He will कलीसिया not है, prevail. तब तक शैतान उसके ऊपर विजय नहीं पा सकता. The power of death cannot come in the world when there is church. जब तक कलीसिया है तब तक इस संसार में मृत्यु का सामर्थ नहीं आ सकता. Jesus said to his disciple, यीशु ने अपने चेलों से कहा, go and preach the word. Bro, go and preach my word. जाकर मेरे वचन का प्रचार करो, Heal the sick रोगियों को चंगा करो and raise the dead. और मरे हुओं को जिंदा करो. So when there is church, there is life. तो जब तक कलीसिया है तो जीवन है. And when will that power of death will be revealed? और वह मृत्यु के शक्ति को कब प्रकट किया When जाएगा? the Antichrist will start rule. मसीह विरोधी राज करने का शुरू कब करेगा? He will not come until the power of life is working. जब तक जीवन का सामर्थ काम कर रहा है तब तक मसीह विरोधी नहीं आएगा. There is church, and so when there is church, Satan cannot or Antichrist cannot come on this world. तो जब तक कलीसिया है तब तक मसीह विरोधी इस संसार में नहीं आ सकता. Jesus blessed his church and said in John 10 verse 28, यीशु ने अपनी कलीसिया को आशीष दी और कहा
यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 28वां I वचन। am giving them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out from my hand. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा। Luke 10 verse 19. लुका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन। Behold, my disciple, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of enemy. देखो मेरे चेले, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। And nothing shall by any means hurt you. और कोई भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। So just think, if Antichrist is appear in this world, तो केवल सोचो, यदि मसीह विरोधी इस संसार में प्रकट हो जाए, I remember the word of God. तो मैं परमेश्वर के वचन को याद रखता हूँ। I will say, nothing shall by any means hurt me. मैं ऐसा कहूंगा कि कोई भी वस्तु से मुझे कोई हानि नहीं होगी। And I will destroy demons. और मैं दुष्ट आत्माओं का नाश करूंगा। For Jesus gave me authority in His name. I will overcome everything. क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया कि उसके नाम में मैं सब बातों पर विजय पाऊंगा। Jesus gave me power over the enemy. दुश्मन के ऊपर यीशु ने मुझे सामर्थ दिया। And if the church is holding power over the enemy, how can enemy enter in the world? और यदि कलीसिया दुश्मन के ऊपर अधिकार चला रही है, तो फिर वह दुश्मन कैसे इस संसार में आ सकता है? The power or the strong should be removed, and then Antichrist can easily come in the world. उस सामर्थ को या उस शक्तिशाली को पहले बीच में से हटा दिया जाए, उसके बाद ही वह मसीह विरोधी इस संसार में आ सकता है। John said in 1 John 5:19, we know we are of God. पहले यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 19वें वचन में यूहन्ना ने कहा कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। And the whole world lies. It's in hand of the wicked or in the hand of Satan. और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, शैतान के वश में पड़ा है। Verse 18. 18वां वचन। But he that is begotten of God, who is born of God, keep him safe. पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जन्मा है, उसे वह बचाए रखता है। And that wicked will not touch this believer. और इस विश्वासी को वह दुष्ट छू नहीं पाता। So if Satan or Antichrist is on the world, तो यदि शैतान या मसीह विरोधी संसार में है, तो will he touch the one who is born of God? तो क्या वह जो परमेश्वर से जन्मा है, उसे वह क्या छू पाएगा? The wicked cannot touch the one who is of God. जो परमेश्वर का है, उसे वह दुष्ट छू नहीं सकता। So all promises are for church. तो सारे वचन प्रतिज्ञाएं मंडली के लिए है। So until the church is there, Antichrist have no place. तो जब तक कलीसिया है, तब तक मसीह विरोधी के लिए कोई जगह नहीं The है। beast cannot be revealed. वह पशु प्रकट नहीं हो सकता। He cannot exalt himself because there are people of God. वह अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकता, क्योंकि अब तक परमेश्वर के लोग मौजूद So हैं। the church, when it is removed, Antichrist can be visible. तो जब कलीसिया को हटा दिया जाएगा, तब मसीह विरोधी प्रकट हो सकता So है। this is the first thing. तो यह पहली बात है। There are 7 things, ऐसी 7 बातें हैं, but I will try my best लेकिन मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, to make you understand. आपको समझाने का उत्तम प्रयास करूंगा। I want that I preach once only. मैं ऐसा चाहता हूं कि एक ही बार में मैं प्रचार करूं। Matthew 24 and verse 7. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 7वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, then later on there shall be they will deliver you up to unto tribulation and shall kill you. Okay, verse 9. 24 and verse मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 9वां वचन। 9 verse. तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। Verse 9. Yes. And you will be hated of all the nation for my name's sake.
और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। And this is coming to happen. और ऐसा होने वाला है। And this what we know, people are hating Christian. और यह बात हम जानते हैं कि लोग ईसाई लोगों से नफरत करते हैं। Even they serve all people and they have charity trust, people will hate them, are hating them. वे लोग सब लोगों की सेवकाई करते हैं, उनके पास सेवा स्थान है, फिर भी वे लोग ईसाई लोगों से नफरत करते हैं। Jesus said in John 5 verse 43, यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 43वें वचन में, "Oh Jew people, I came in my Father's name, I am honoring my Father, and you receive me not." कि हे यहूदी लोगों, मैं मेरे पिता के नाम में आया, मेरे पिता का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम मेरा स्वीकार नहीं करते। I am saying he is great. मैं कह रहा हूँ कि वह महान है। I am giving him glory and honor. मैं उसे ही महिमा और आदर देता हूँ। I am saying I don't do by my will. और मैं कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा के अनुसार मैं नहीं कर रहा I हूँ। am not judging no one. मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ। God, Father has sent me. लेकिन पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा है। So Jesus said, I came in my Father's name and you receive me not. तो यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के नाम से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। If another shall come in his own name, you will receive him. और यदि कोई अपने ही नाम से आए तो उसे तुम ग्रहण कर लोगे। So Jesus prophesied that you Israel people, you will be deceived. तो यीशु ने भविष्य कहा कि हे इजरायली लोगों, तुम भरमाए जाओगे। And I am not honoring myself, but the one who will come and he will demand for honor, you will receive him. लेकिन मैं मेरे खुद का सम्मान नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा आएगा जो खुद की महिमा ढूंढेगा और तुम उसे मान दोगे, उसका स्वीकार कर दोगे। When he will come in his own name, जब वह अपने नाम में आएगा तब उसका स्वीकार करोगे। he will seek his own name glory, वह अपने ही नाम की महिमा ढूंढेगा and you will receive him. और तब तुम उसका स्वीकार करोगे। And Revelation 13 chapter verse 4 says, this Antichrist, he will receive power from devil or Satan. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 4था वचन, यहाँ लिखा गया है कि यह मसीह विरोधी वह शैतान की ओर से ताकत पाएगा। And people will worship this Antichrist. और लोग इस मसीह विरोधी की आराधना करेंगे। And there will be no people to make war against this person. और इस व्यक्ति के विरोध में लड़ाई करने के लिए कोई लोग नहीं होंगे। People will be killed. लोगों को मार दिया जाएगा उसके सामने बोलेंगे तो। Revelation 13 verse 5. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 5वां वचन, And this beast or this Antichrist, with his mouth, he will be given mouth to speak against great things and blasphemy. और इस मसीह विरोधी को बड़े बोल बोलने की और निंदा करने के लिए उसे मुंह दिया जाएगा। And he will be given authority to act 40 and 2 months. और उसे 42 महीने तक। So this is the time period given to Antichrist to boast. और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया जाएगा। यह वह समय है उसे अभिमान करने के लिए दिया जाएगा। That time Israel will understand we have lost our kingdom. तब इजरायली लोग समझेंगे कि हमने हमारा राज्य खो दिया है। There will be no power of Jesus and Jehovah. तब कोई यीशु का या यहोवा का कोई सामर्थ नहीं होगा। Full time will be hand over to this Antichrist. तब वह पूरा समय इस मसीह विरोधी को दिया जाएगा। And he will rule as he will, his wish. और अपनी इच्छा के अनुसार यह मसीह विरोधी राज करेगा। He will speak against God. और वह परमेश्वर के विरोध में बोलेगा। And who not worship him, he will kill them. और जो उसकी आराधना नहीं करेंगे उसको वह मसीह विरोधी मार डालेगा। But before this man of destruction, the Antichrist come. लेकिन यह विनाश के मनुष्य के पहले मसीह विरोधी आएगा। The Antichrist come, church will be not there. मसीह विरोधी आएगा तब मंडली नहीं होगी। And the Jew will be received. और यहूदी लोग इस मसीह विरोधी का स्वीकार करेंगे। Second thing, दूसरी बात, why we believe क्यों हम मानते हैं that at Antichrist time we will not stay. कि मसीह विरोधी के समय में हम नहीं होंगे, ऐसा हम क्यों मानते हैं? Daniel 9 chapter verse 27. दानियल की किताब 9वां अध्याय 27वां वचन, Daniel said
anointed one or the Antichrist, when he will come, दानियल के he will confirm a covenant with many Jew people. दानियल ने कहा कि जो अभिषिक्त है या तो जो मसीह विरोधी है, जब वह आएगा तो बहुत यहूदी लोगों के साथ वह अपना करार करेगा. For 1 month or for 1 week, that is 7 years, he will confirm. एक सप्ताह के लिए कि जो 7 साल का समय है तब तक का वह करार करेगा. But in the middle of the week, he will put an end to the sacrifice and offering. परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा. So here we see that already sacrifice and offering are going to start at the time of temple, at the temple when the temple will be built. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मंदिर को फिर से बनाया जाएगा तो बलिदान की प्रक्रिया शुरू होगी. But in the middle of the week, he will put the end. He will cease. He will stop the offering. लेकिन आधे सप्ताह के बीच में ही वह उसे रोक देगा और बलिदानों को रोक देगा. And on the wing of the temple will come the abomination that cause desolation. और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी. People will see destruction everywhere. He will start. Antichrist will start his rule. लोग हर जगह पर विनाश देखेंगे. मसीह विरोधी अपना काम, अपना राज शुरू करेगा He will break his promise. और वह अपना वचन तोड़ देगा. He will allow the people to build temple. वह लोगों को मंदिर बांधने के लिए परवानगी देगा, ऐसा करने देगा. But his desire will be to sit in the temple to receive God glory. लेकिन उसकी इच्छा यह रहेगी कि वह मंदिर में बैठकर परमेश्वर की महिमा पाए. So without temple, this man will not appear because he want to sit in the temple. तो मंदिर के बिना यह मनुष्य प्रकट नहीं होगा क्योंकि वह मंदिर में बैठना चाहता है. Holy place is still lacking. This holy place is still lacking. यह पवित्र स्थान अब भी मौजूद नहीं है. So Antichrist is not there. तो मसीह विरोधी नहीं है. When church will be removed, the Old Testament law and sacrifice will start. जब Take place. कलीसिया को हटा दिया जाएगा तब पुराने नियम के बलिदान और वह सारी बातें फिर से शुरू होगी. So there is no temple in Jerusalem, so there is no Antichrist in the world. तो यरूशलेम में मंदिर नहीं है, इसीलिए इस संसार में मसीह विरोधी नहीं है. Because in church age there will be no temple. क्योंकि कलीसिया के समय तक मंदिर नहीं होगा. Hebrew 9:26 says, इब्रानियों का पत्र 9वां अध्याय 26वां वचन कहता है, Jesus entry, when Jesus came in the world, he stopped the sacrifice. When Jesus came, sacrifice was stopped. जब यीशु इस संसार में आया तो बलिदान बंद हुए थे. Because that was what God has planned. क्योंकि परमेश्वर ने वही योजना की थी. Verse 26. इब्रानियों का पत्र 9वां अध्याय 26वां वचन. Otherwise Christ would have had to suffer rapidly since the foundation of the world. नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर मसीहा को बार बार दुख उठाना पड़ता. Christ have to come many times if this by sacrifice, if God is been pleased. यदि बलिदान से परमेश्वर खुश होता तो मसीहा को बार बार आना पड़ता. But now he had appeared once for all at the end of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. पर स्वर्गीय में प्रवेश किया ताकि पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे. So Jesus Christ has removed sin. तो यीशु मसीह ने पाप को हटा दिया. By his sacrifice he has removed the sin. अपने बलिदान के द्वारा उसने पाप को हटा दिया. So Christian people, they don't offer any sacrifice. तो मसीही लोग वे कोई बलिदान नहीं देते हैं. That was been taught that you should offer sacrifice to God. वह सिखाया गया था कि तुम्हें परमेश्वर को बलिदान देने चाहिए. And God sent Jesus Christ and he stopped the sacrifice. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने वह बलिदान को बंद किया. But Jew people, they are following Moses law. लेकिन यहूदी लोग मूसा के नियम का पालन करते हैं And they want
sacrifice. और वे बलिदान चाहते हैं। And there is no temple, so there is no sacrifice. और जब मंदिर नहीं है तो अब बलिदान भी नहीं है। But when there is Holy Spirit, people are in the truth. लेकिन जब तक पवित्र आत्मा है तब तक लोग सत्य में है। Daniel 9 verse 26. दानियल की किताब 9वां अध्याय 26वां वचन। Then after 62 weeks, the Messiah will be cut off, and here it says, and will have nothing. This is about Jesus Christ. 9:26. दानियल उसका 9वां अध्याय 26वां वचन। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। यह यीशु मसीह के बारे में है। Nothing of his work and nothing his power and nothing, no people of him will remain. और No one will remain with this Christ. इस मसीहा के हाथ कुछ ना लगेगा और उसके आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, उसके हाथ का कोई काम नहीं बचेगा। Christ will be cut, the Messiah who is going to come, and he will be cut, मसीहा आएगा और उसे काट दिया जाएगा and nothing of him will remain on the face of the earth. और मसीहा का जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। People will kill this anointed king that God has sent. परमेश्वर ने जो अभिषिक्त राजा को भेजा है उसे लोग मार डालेंगे। And that was prophesied already about Jesus Christ. और वह यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्य कहा गया था। And later his people will also not remain. और उसके बाद मसीहा के लोग भी नहीं बचेंगे। And further it says, then the foreign ruler, the prince of the world, will come with his army, and he will destroy the city and the holy place. उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि वह प्रधान एक Another will come. Another king. दूसरा प्रधान आएगा। Yes. और जो उस नगर को और पवित्र स्थान को और सब लोगों का नाश करेगा। First anointed will come and people will kill. पहले जो अभिषिक्त थे वह आएगा और लोग उसे मार डालेंगे। And later on his people will not remain. और उसके बाद उस मसीहा के लोग नहीं रहेंगे। And then another foreign ruler or the prince of the world, he will appear with his army and he will destroy the city and the holy place too. उसके बाद इस संसार का प्रधान राजकुमार अन्य जाति का व्यक्ति आएगा और वह उस प्रजा को, नगर को और पवित्र स्थान को नाश कर देगा और राज करेगा। So in Daniel there is prophecy about Jesus Christ and there is prophecy about Antichrist. तो दानियल की किताब में यीशु मसीह के बारे में और मसीह विरोधी के बारे में भी भविष्य वचन है। When Paul said that he want that he be seated in the temple, जब पौलुस ने ऐसा कहा कि मसीह विरोधी ऐसा चाहता है कि वह मंदिर में बैठे, Paul is writing when there was temple. तो पौलुस लिख रहा है जब मंदिर था तब लिख रहा था। But later on the temple was been destroyed. लेकिन उसके बाद उस मंदिर का विनाश किया गया। So Christian people very well know without temple Antichrist cannot come. तो मसीही लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मंदिर के बिना मसीह विरोधी नहीं आ सकता। So we believe that Christ who has diverted the people and made and stopped the sacrifice, तो हम ऐसा मानते हैं कि मसीहा ने जिसने लोगों को बदल दिया और बलिदान को बंद कर दिया। now we Christian people, we read Old Testament, New Testament, but we don't do sacrifice. अब हम ईसाई लोग पुराना नियम नया नियम दोनों पढ़ते हैं लेकिन हम बलिदान नहीं करते हैं। And God had never desire for sacrifice. That's what we understand. और परमेश्वर ने कभी बलिदान की इच्छा नहीं की, ऐसा हम समझे। But the teaching will be removed. When this teaching will be removed, so again the Old Testament will once again be inactive. लेकिन यह ईसाई लोगों के शिक्षण को हटा दिया जाएगा और उसके बाद फिर से पुराने नियम की सारी विधियों का पालन किया जाएगा और फिर से शुरू होगी। Once again Old Testament will start when the first teaching will be destroyed. जब पहले शिक्षण का नाश किया जाएगा उसके बाद पुराने नियम का बलिदान और शिक्षण शुरू होगा। So this first what Jesus taught, it should be removed. तो यीशु ने जो पहले ये सब सिखाया उसे हटा दिया जाना चाहिए।
then only the people will start giving offering. उसके बाद ही वह लोग बलिदान करना शुरू कर सकते हैं। Last third thing and further, and I will close soon. तीसरी बात और उसके बाद मैं पूरा करूंगा। Why we believe Christian will not stay in the time of Antichrist? मसीह विरोधी के समय में मसीही लोग नहीं रहेंगे, ऐसा हम क्यों मानते Hebrew हैं? 11:5 says, इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 5वां वचन कहता है, Enoch was taken. He was taken away. He was with God because he was pleasing God. हनोक को उठा लिया गया, वह परमेश्वर के साथ था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ खुश था, वह परमेश्वर को खुश करता था। So those who are pleasing God तो जो लोग परमेश्वर को खुश करते will हैं be saved from the death. उनको मृत्यु से बचाया जाएगा। They will not see the entry of the last enemy. जो अंतिम दुश्मन है उसके प्रवेश को वह लोग नहीं देखेंगे। Bible says last enemy is dead. बाइबल कहता है कि अंतिम शत्रु मृत्यु है। And Jesus said, you will not see the dead. और यीशु ने कहा कि तुम मृत्यु नहीं देखोगे। Who believe me, who obey me, they will not see the death. जो मुझ में विश्वास करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, वे मृत्यु नहीं देखेंगे। John 8 and verse 51. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 51वां वचन, If you believe me, यदि तुम मेरा विश्वास करो, if you obey my commandment, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन you will करो, not see death. तो तुम मृत्यु नहीं देखोगे। We know Enoch, he see no death, so he was been lifted up, or he was taken to God. हम जानते हैं कि हनोक ने मृत्यु नहीं देखा, इसीलिए उसे परमेश्वर के पास ऊपर उठा लिया गया। So that he don't see death. इसीलिए कि वह मृत्यु ना देखे, इसीलिए उसे उठा लिया गया। Matthew 16:18. मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 18वां वचन, For church, Jesus said, कलीसिया के लिए यीशु ने कहा, power of death will not go against this church. मृत्यु का सामर्थ्य इस कलीसिया के विरोध में विजय नहीं पाएगा। How can Christ and Antichrist at both time be on the earth? मसीहा और मसीह विरोधी दोनों एक ही समय में पृथ्वी पर कैसे हो सकते हैं? The Christ should be cut off, मसीहा को काट दिया जाना and his चाहिए thing or whatever he is holding should be removed. और मसीहा का जो कुछ भी है वह सारा निकाल दिया जाए। Then only another anointed will be appear. उसके बाद ही जो दूसरा अभिषेक थे वह प्रकट हो सकता है, होना चाहिए। How can Christ and Antichrist come together? मसीहा और मसीह विरोधी दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? For Christ will not leave the church. क्योंकि मसीहा कलीसिया को नहीं छोड़ेगा। If church remain, यदि कलीसिया रहती है तो then Christian will overcome the power of Hades or power of death. तो मसीही लोग मृत्यु के सामर्थ पर, हादेस के सामर्थ पर विजय पाएंगे। Either church rule or Antichrist. या तो कलीसिया राज करेगी या मसीह विरोधी राज करेगा। What do you think? आप क्या सोचते हो? Kingdom of God should be removed. So for it is a hindrance to the coming king. Hindrance to the coming king. For the coming king. परमेश्वर के राज्य को हटाया जाना चाहिए क्योंकि वही आने वाले दूसरे राजा के लिए रुकावट है। And the coming king is Satan. और वह आने वाला राजा शैतान है। So the first kingdom should be removed. तो पहला जो राज्य है उसे बीच में से हटा दिया जाना चाहिए। We believe until church exists, जो हम ऐसा मानते हैं जब तक कलीसिया का अस्तित्व है, the kingdom of devil cannot be established. तब तक शैतान का राज्य उसकी स्थापना नहीं हो सकती। So first king should be cut off, his things should be taken, and another king can come. तो पहले राजा को काट दिया जाए और उसका जो कुछ भी है उसे हटा दिया जाए, उसके बाद ही दूसरा राजा आ सकता है। And those who believe in Jesus Christ, they will not see death. और जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे मृत्यु नहीं देखेंगे। And last enemy is death, and he is going to come. और जो अंतिम शत्रु है वह मृत्यु है और वह आने वाला है। If you have read Revelation, you would find out death and Hades. यदि आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है तो आप ढूंढ निकाल सकते हो मृत्यु के बारे में और हादेस के बारे में। They both are going to be judged. वह दोनों का न्याय किया जाएगा। And they are sitting on the horse. और वे दोनों घोड़े पर बैठेंगे। And they are going to come. The death is going to come. और वह मृत्यु आने वाला है। But when Jesus is there with the church, लेकिन जब यीशु कलीसिया के साथ है, there is life. तब तक जीवन है। Amen. आमेन। More I will explain later on. और आगे मैं बाद में बताऊंगा। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Thank you आशीर्वाद for दे। listening. सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for He had loved us. क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। Unless He don't restore everything, He will not come. जब तक मसीहा सारी बातों की पुनर्स्थापना ना कर दे, सुधार ना दे, तब तक नहीं आएगा। He will stay at His home. वह अपने घर में ही रहेगा। Jesus Christ, thank you यीशु मसीह आपका धन्यवाद for you went to prepare the place. क्योंकि आप जगह तैयार करने के लिए गए। And unless you don't prepare the place, you will not come. और जब तक आप जगह तैयार ना करो तब तक आप नहीं आओगे। Thank you, Jesus Christ, यीशु मसीह आपका धन्यवाद for giving us promise. हमें वचन देने के लिए। We believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं। Once again, we commit our life in your hand. फिर से एक बार हम हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। And what we believe, we have confess. और जो हम मानते हैं उसे हमें कबूल किया है। I pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ Let they agree with the truth. कि वे भी सत्य के साथ सहमत हो। And what more revelation you are going to present, और आगे जितना भी ज्ञान आप बताने वाले हो, let people receive it. वो उस ज्ञान का, उस प्रकाश का लोग स्वीकार करें। With love, receive it. प्रेम के साथ उसका स्वीकार करें। Holy Spirit, help them. पवित्र आत्मा उनकी मदद करो। Let your truth be revealed to each one. आपका सत्य हर एक के सामने प्रकट किया जाए। You are waiting for many people to come. बहुत लोगों के आने के लिए आप राह देखते हो। You want to save many people from the destruction. विनाश में से आप बहुत लोगों को बचाना चाहते हो। Only Israel is going to face the temptation time. और पीड़ा का समय केवल इजरायली लोग ही उसका सामना करेंगे। And you have prepared them very well. और आपने इजराइल को अच्छी तरह से तैयार किया है। Father, thank you for Jesus Christ, पिता यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद, who came to save us. जो हमें बचाने के लिए आया। Whatever has been preached, let it be sown, and we reap 100-fold. जो कुछ भी प्रचार किया गया है वह बोया जाए हम, और उसका 100 गुना फल काटे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज And हमें forgive दो, our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले but जाओ, deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy is है, power, पराक्रम आपका Thy is है, glory. महिमा आपका है। forever Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले।